chapter, introduction to project planning, then software cost estimation. That means how we can estimate the cost of our software project. We can use number of techniques for that. I will be discussing all the techniques. So first will be the cost estimation model. There are cost estimation models that estimates the cost of your software project. Okay. Second is software size metrics. These size metrics are used to calculate the size of your software project. Third is empirical estimation. This is a type of estimation technique. Then heuristic estimation, then COCOMO model. COCOMO model is basically constructive cost estimation model. Constructive cost estimation model. So next we will discuss staffing level estimation. After that, effect of schedule compression on cost. So first is many software projects fail due to faulty project management practice. It is important to learn different aspect of SPM. Now what is SPM basically? This means that whenever you take some considerations to manage your project, that considerations are called as software project management. Okay. So sometimes what happened, the project fail. Why it failed? Due to faulty management practices. When the persons in the team are not aware about the management of the project. They are not aware about the management of the project, how to manage the software project. So in that case, the software project fails. So it's very important to learn about the software project management techniques. So what is the goal of software project management? The goal is to enable a group of engineers to work efficiently towards successful completion of a software project. So what are the responsibilities of a software project manager? These are the responsibility of project manager. First is project proposal writing. That I think you have already done. I told you in the lab you have to submit the project proposals. So what you submitted to me, you submitted your proposals in the written format. Okay, so that is basically the project proposal writing. Second is project cost estimation. After that, you have to submit me the project cost estimation. If you have to give the software project after developing to the customer, तो कस्टमर आपसे पूछेगा ना कि इसके लिए कितना कॉस्ट होगा, वो आप मुझे एस्टिमेट बता दीजिए. ठीक है. अगर किसी भी पर्सन ने आपसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो वो उससे पूछेगा कि आप मुझे इसकी कॉस्ट बता दीजिए. तो हाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपर विल बी एबल टू फाइंड द software project cost? So for that he will be using the cost estimation techniques. Third is scheduling. Now what is scheduling? Scheduling we have discussed using the Gantt chart. Gantt Gantt chart. Now what were Gantt charts? Gantt charts हमने discuss किए थे in the project LibreOffice. Gantt chart. Okay. Now what is exactly Gantt chart? It shows the complete progress of the project. It shows the progress of the project. Okay, so that is basically scheduling. Scheduling means making the overall plan of the project. So next is project staffing. Project staffing means how many members you need to develop the software project. That is basically project staffing. Look at project monitoring and control. You have to monitor and control the project time to time using the various software process models. Okay. Next is software configuration management. This we will also discuss later on. After that, risk management. How will you manage the risk that will come in between the software project development? Last is managerial report writing and presentation. So next is a project manager activities are varied. That means the activities of the manager, project manager varies from person to person. Okay, ये वेरी करता है कि मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर रहा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू project planning, project monitoring and control activities. Okay, so once a project planning क्या है, what is project planning? Once a project is found to be feasible, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? We have discussed in SDLC. हमने SDLC पढ़ा था, उसमें क्या था? फर्स्ट स्टेप वाज feasibility study. Okay, feasibility study. Now it is a work that is to be performed by the project manager to check the feasibility of the project के whether जो भी उसने customer से assignment
ली है करने के लिए, वेदर इट इज फिजिबल टू इम्प्लीमेंट और नॉट। ओके, तो जब वो फिजिबल होगा उसके बाद वो क्या डिसाइड करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर अंडरटेक प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके बाद वो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट करेगा। ओके, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज क्या है? दीज आर द प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट प्लानिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते इसमें, जस्ट एक एस्टिमेट रेडी कर लेना, अप्रॉक्सीमेट। ओके, कि कितना एफर्ट लगेगा, एफर्ट के अकॉर्डिंगली, एफर्ट में हम क्या क्या चीज़ें अपनी, एफर्ट क्या है, कॉस्ट कितना लगेगा, रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे और वो अवेलेबल है या नहीं, या हमें ये परचेज करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा। ओके, सो आफ्टर दैट प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, प्रोजेक्ट स्केड्यूल करोगे, जो हमने प्रोजेक्ट लिब्रे ऑफिस यूज़ करके, प्रोजेक्ट लिब्रे ऑफिस और ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ अवर प्रोजेक्ट वी कुड मैनेज दैट, हम उसको मैनेज कर सके। अगर इतने टाइम, हम टाइम टेबल बनाते हैं ना यूजुअली, टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? टाइम टेबल, आपको हर लेक्चर के लिए एक टाइम मिला हुआ है कि आपका लेक्चर 3:30 से 4:20 मेरा लेक्चर है, नेक्स्ट आपका किसका लेक्चर है, तो बेसिकली वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। सिमिलरली जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, उसको मैनेज करने के लिए भी आप प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग करोगे कि कौन सी एक्टिविटी आपने कितने टाइम में कंप्लीट कर लेनी है, ताकि आप कस्टमर को इंश्योर कर सको कि आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी डिलीवर्ड टू यू इन टाइम। ओके, सो आफ्टर दैट first was estimation. In project planning activities, the first step is estimation, in which you will estimate about the effort, cost, resources and project duration. After that you will go to project scheduling. Okay, how much time will each activity take, that you will define in the project scheduling. After that, staff organization. Now what is staff organization? That means integrating the persons depending upon the expertization in different activities. डिफरेंट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइजेशन इन्वॉल्व करना, उनको टास्क देना, सो दैट यू कैन अचीव द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन अ डिसाइडेड टाइम स्केड्यूल। ओके, सो नेक्स्ट इज रिस्क हैंडलिंग। व्हाट इज रिस्क हैंडलिंग? टू हैंडल द रिस्क दैट कम इन बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना कि किस तरह का है। अबेटमेंट प्रोसीजर मतलब उस रिस्क को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर्स को भी स्टडी करना कि अगर हमें इस टाइम पे ये एरर आ जाती है तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं उस टाइम पे। ओके, सो आफ्टर दैट लास्ट इज मिसलेनियस प्लान्स। दैट मीन्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दैट कैन बी क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। कस्टमर को एश्योर करना दैट जो भी आपने उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिया है बना के, दैट इज हैविंग द क्वालिटी, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। ओके, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर प्लानिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है। आफ्टर प्लानिंग इज कंप्लीट यू हैव टू डॉक्यूमेंट द प्लान। प्लान को आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। जैसे आप एसआरएस को, एसआरएस में क्या करते हो, जस्ट आप रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हो, इसमें क्या करना है, प्लानिंग को डॉक्यूमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, जो एसपीएमपी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे आप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसपीएमपी डॉक्यूमेंट। तो एसपीएमपी डॉक्यूमेंट में क्या होगा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन करोगे आप, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोजेक्ट के, इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शंस क्या है, आफ्टर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, परफॉर्मेंस इश्यूज क्या है, क्या क्या परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं इसमें, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। उसके बाद प्रोजेक्ट एस्टिमेट बताओगे, क्या बताओगे उसमें, हिस्टोरिकल डेटा, एस्टिमेशन टेक्निक, एफर्ट, कॉस्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब प्रोजेक्ट प्लान जो आपने बनाया था उसमें आपने हर एक्टिविटी के साथ आपने उसका अप्रॉक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन लिखा था, टाइम ड्यूरेशन लिखा था आपने, तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया आपका, प्रोजेक्ट एस्टिमेट। ठीक है, वो जो टाइम ड्यूरेशन आपने लिखा था वहाँ पे, मान लो 5 डेज 10 डेज, तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी का साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लान क्या है, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्पेशल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज लगेंगे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, दैट कम्स अंडर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज प्लान। एसपीएमपी डॉक्यूमेंट में आपने ये चीज़ें भी मेंशन करनी है। ओके, तो जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें आपने कॉलम्स ऐड कर लेने हैं, और कॉलम्स उसमें आप लिखोगे कि कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होंगे, हार्डवेयर क्या चाहिए उसके लिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आप प्रोजेक्ट लिब्रे ऑफिस के एक डॉक्यूमेंट में ही बना सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है स्केड्यूल। स्केड्यूल में क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो हम बना चुके हैं,
गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन, पर्ट चार्ट। अब गैंट चार्ट हमने कर लिया है, पर्ट चार्ट हम इस चैप्टर में करेंगे कि क्या होता है। मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है कि कौन कौन से रिस्क इसमें आ सकते हैं, जब आ गए तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एनालाइज कैसे करोगे, फिर उनको सॉल्व कैसे करोगे, ये चीज़ें तीनों आपने मेंशन कर ली उसमें। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल प्लान, हाउ टू ट्रैक द प्रोजेक्ट, कैसे ट्रैक करोगे उसको, उसका पूरा प्लान होना चाहिए, कंट्रोल प्लान। हर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। सो लास्ट इज मिसलेनियस प्लान, इसमें क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोसेस टेलरिंग। प्रोसेस टेलरिंग क्या का मतलब क्या है, प्रोसेस टेलरिंग का मतलब है कि हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कैसे रिलेटेड है वो, ठीक है, दैट इज प्रोसेस टेलरिंग। सो नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। अब सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है, इसमें सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे कि साइज क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है, साइज पे डिपेंड करेगा कॉस्ट भी। अगर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका अगर साइज ही बहुत ज़्यादा है, जो कोडिंग कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कोडिंग हो रही है उसमें, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा कोडिंग करने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। ओके, तो सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेशन में कौन सा स्टेप आएगा, डिटरमाइन द साइज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद साइज एस्टिमेशन के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें एफर्ट कितना लग रहा है। ओके, सबसे पहले साइज पता करो प्रोडक्ट का, कुछ मैट्रिक्स यूज करेंगे हम, परफॉर्म मैट्रिक्स टू मेजर द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। उसके बाद एफर्ट देखोगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज यू विल डिसाइड द एफर्ट। अब एफर्ट से डिसाइड करोगे आप ड्यूरेशन कितनी होगी, ठीक है, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। साइज डिसाइड करोगे, फिर एफर्ट, फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिपेंडिंग अपॉन द एफर्ट। ओके, उसके बाद कॉस्ट, ठीक है, फाइनल जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, कॉस्ट। तो बिफोर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट यू हैव टू एस्टिमेट द साइज, एफर्ट एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ओके, सो दिस इज एक्चुअली साइकिल दैट वर्क्स इन द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू एस्टिमेट द साइज by using some performance metrics and also use that। so size estimation क्या करेगा, साइज को एस्टिमेट लग गया, उसके बाद साइज एस्टिमेशन के बाद दो एक्टिविटीज पैरेलली हो सकती हैं। साइज एस्टिमेशन के बाद एफर्ट एस्टिमेशन होगा, ओके, साथ में ही आपको टाइम भी पता चल जाएगा कि इतना साइज है तो टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली इसको इतना लग जाएगा। एस्टिमेट का मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेट, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो एफर्ट एस्टिमेशन के बाद जब ये दोनों चीज़ें हो गई, ड्यूरेशन एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, उसके बाद यू कैन डू द कॉस्ट एस्टिमेशन। ओके, नो एफर्ट एस्टिमेशन के बाद आप क्या करोगे, जब आपको क्लियर हो गया दैट यू विल रिक्वायर दिस मच एफर्ट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ओके, देन यू विल गो फॉर द स्टाफिंग एस्टिमेशन, कि कितने आपकी टीम में कितने मेंबर्स चाहिए उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, दैट इज बेसिकली द स्टाफिंग एस्टिमेशन, जिसमें आप कैलकुलेट करोगे, पर्सन्स कैलकुलेट करोगे, पर्सन्स कितने चाहिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं कोकोमो मॉडल, कोकोमो मॉडल। ओके, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है, ये कॉस्ट भी बताता है, ये आपको एफर्ट भी बताता है, ओके, कॉस्ट भी बताता है और स्टाफ भी बताता है कि कितना रिक्वायर्ड है। ओके, सो ड्यूरेशन एस्टिमेशन, ये तो ड्यूरेशन एस्टिमेशन के बाद भी आप कहाँ पे जाओगे, स्टाफिंग एस्टिमेशन। तो आफ्टर यू हैव डन विद स्टाफिंग एस्टिमेशन, उसके बाद क्या करोगे, आप स्केड्यूलिंग करोगे, ठीक है, आप बताओगे कि कौन सा टास्क आप कितने टाइम में कंप्लीट कर लोगे। स्केड्यूलिंग में आप डिसाइड करोगे टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सो सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की बेसिकली थ्री मेन अप्रोचेज हैं। what that approaches are, that are empirical, heuristic and analytical. I will discuss these approaches: empirical approach, heuristic approach and analytical approach. So what are empirical approaches? It is an educated guess based on past experience. अब empirical technique क्या है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ही इज ऑलरेडी हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द सिमिलर प्रोजेक्ट, कोई उसके पास नया प्रोजेक्ट आया जो कि सिमिलर था, जो कि उसने कोई और प्रोजेक्ट बनाया है उसके ही सिमिलर था, ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन दैट पास्ट एक्सपीरियंस वो उसका कॉस्ट एस्टिमेशन बता देगा कस्टमर को। स्टिक टेक्निक, व्हाट इज ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स, it uses some mathematical expression। okay, so we will use the function point matrix, okay,
COCOMO model. These are basically the heuristic techniques that evaluate the cost on the basis of mathematical expression. There are some formulas. Depending upon that formula, they evaluate the cost of the project development. Okay. The third is analytical technique. What is analytical technique? It derives the required result starting from certain simple assumption. अब इसमें क्या होगा? इसमें बहुत चांसेस हैं, फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टेक्निक में, एनालिटिकल टेक्निक में. क्यों? क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उनको कैसे स्टेट करेगा, कैसे डिराइव करेगा, बेस्ड ऑन सिंपल एजम्पशन. जस्ट